হে গাইজ, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। তো আজকের যে দিনটা সেটা হচ্ছে আমার কাছে অনেক স্পেশাল। আশা করি তোমাদের কাছেও অনেক স্পেশাল, কারণ এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদের হয়তো এই দিনটা অতটাও তারা কেয়ার করে না সেরকমভাবে, কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যারা এটাকে সিরিয়াসভাবে নেয়। একজন দেশপ্রেমিক যদি হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই হয়তো সিরিয়াসভাবে নিয়ে থাকবে। তো তোমাদের সবাইকে জানাই ৭৩তম প্রজাতন্ত্র দিবসের অনেক 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 শুভেচ্ছা আর অভিনন্দন। এবার আজকে যেখানে আমি আছি সেটা হচ্ছে বিগত ৩ বছর যেখানে প্রতিদিন এটা কি প্রতিদিন নয়, সপ্তাহে একদিন আসতাম, এবং এই যে স্পেশাল যে ইভেন্টগুলো 15ই আগস্ট বলো, 26শে জানুয়ারি বলো, প্রত্যেকবারে আমি যেখানে থেকেছি এই বছর 4 নম্বর বছরেও আমি সেখানেই রয়েছি, 41 বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের আন্ডারে, যেখানে আমি এনসিসি করতাম, প্রভু জগৎবন্ধু কলেজ। আমি সেখানে আবার চলে এসেছি সবার সাথে আজকে দিনটা সেলিব্রেট করব বলে। অনেক 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 মজা হবে। এবং তোমাদের দিকে সবথেকে বড় জিনিস যেটা অনেকে হয়তো দেখো নি, যে এনসিসিতে কীভাবে 26শে জানুয়ারি বলো বা 15ই আগস্ট সেটা কিভাবে পালন করা হয়, তো সেটাই দেখানোর জন্য আজকে আমি এসেছি। বিশেষ করে কারণ ডিউটিতে ছিলাম, সেখান থেকে ডাইরেক্ট চলে এসেছি। আশা করি তোমাদের আজকে ভিডিওটা অনেক ভালো লাগবে। কারণ এবং সবথেকে বড় ব্যাপারটা কি, এখন করোনার জন্য সবাই হয়তো উপস্থিত থাকতে পারেনি এখানে। স্যার যতটা পেরেছে সেভাবে চেষ্টা করেছে, এবং আই হোপ এটা অনেক সুন্দর হবে। ঠিক আছে, ভিডিওটা সবাই শেষ পর্যন্ত দেখো। আর হ্যাঁ, ভালো লেগে থাকলে কমেন্টে কিন্তু জয় হিন্দ অবশ্যই লিখবে। ঠিক আছে, তো বেশি সময় নষ্ট না করে ওখানে মাঠে সবাই উপস্থিত রয়েছে। তো আশা করি আজকে ভিডিওটা তোমাদের অনেক 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 ভালো লাগবে। এখন বাজে সকাল 8:30। ঠিক আছে, কিছুক্ষণ পরে ফ্ল্যাগ হোস্টিং শুরু হবে, তারপরে অনেক ইভেন্ট রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে, অনেক ভালো লাগবে। চলো ভিডিওটা আজকের শুরু করা যাক। जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমাদের সেই শহীদ বেদিটা সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, যেখানে আমরা কিছুক্ষণ পরেই একসাথে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করব। এই শহীদ বেদিতে বহু মানুষের বলিদান লুকিয়ে আছে। সেই সমস্ত শহীদদের আমরা কখনো ভুলব না, আমরা সব সময় তাদের স্মরণ করে রাখব। এটা বলবো সব সময় যে বীর শহীদ, তোমাদের আমরা ভুলছি না, ভুলব না। শহীদরা সব সময় অমর হয়ে থাকবে আমাদের সবার মাঝে। This is the guard party who are selecting for guard of honor, যারা আজকে রাষ্ট্রীয় স্যালিউট দিয়ে আমাদের জাতীয় পতাকাকে সম্মান জানাবে। এটা হলো আজকের অনুষ্ঠানের আমাদের ব্যান্ড পার্টি, যাদের ব্যান্ডের একটা ডিক বা ব্যান্ডের একটা আওয়াজ এই গোটা নিস্তব্ধ গ্রাউন্ডের সমস্ত ক্যাডেটদের অ্যালার্ট করে দিতে পারে। এটা হলো আমাদের গ্রাউন্ডে ঢোকার প্রবেশপথ, যেখান দিয়ে আমাদের অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসার, আমাদের কমান্ডিং অফিসার এবং অন্যান্য যারা
গেস্টরা রয়েছেন তারা এখান দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং আমাদের পতাকা উত্তোলনের যে জায়গা সেখানে পৌঁছাবেন। এখানে যেখানে ডান দিকে রয়েছে আর্মি, নেভি, এয়ারফোর্সের 3টে ফ্ল্যাগ। তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ যে আমাদের এই প্রবেশপত্রকে কী সুন্দর করে সাজানো হয়েছে এবং এই সব কিছুটা আমাদের ক্যাডেটরাই করেছে। যার বাম দিকে রয়েছে আমাদের ভারতের জাতীয় পতাকার 3টে রং এবং আমাদের সামনে এই গোটা মাঠের দৃশ্যটা একটা অপূর্ব লাগছে, সত্যি একটা অপূর্ব দৃশ্য, তাই না? এবার যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমাদের পাইলটিং পার্টি, যারা মার্চিং করতে করতে আমাদের অনারেবল গেস্ট, আমাদের কমান্ডিং অফিসার এবং এএনও আমাদের যে অ্যাসোসিয়েট এনসিসি অফিসার, তিনি সবাইকে আমাদের যেখানে ফ্ল্যাগ উত্তোলন করা হবে, আমাদের পতাকা উত্তোলন করা হবে, সেখান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এই 4জন পাইলটিং পার্টিদের। এদের হাতে প্রত্যেকের কাছে একটা করে থাকে কেন, যেটা এরা বাম হাতে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি এরা কিভাবে হাঁটে, কিভাবে নেয়, কিভাবে কেনটাকে ধরে মার্চিং করতে করতে এগিয়ে যায় যেখানে ফ্ল্যাগ হোস্টিং হতে চলেছে। আমরা যারা এনসিসি ক্যাডেট, যখন আমাদের হাতে কেন থাকে বা রাইফেল থাকে, আমরা সবসময় এটাকে আমাদের শরীরের একটা অংশ ভেবে থাকি, আমরা এটাকে সবসময় সম্মান জানাই। হ্যাঁ, ওই তোরা এই মাস্ক কিনতে দে না, ওই মাস্ক করিস না, যা করবি সবাই একরকম কর। ওপর থেকে আমাদের গ্রাউন্ডের লুকটা ঠিক এরকম দেখতে লাগে। আমাদের সামনে যে টিমটা এখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটা হচ্ছে কালচার অ্যাক্টিভিটিজের টিম, যারা আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানে এদের নৃত্য প্রদর্শন করবে এবং এই অনুষ্ঠানটাকে আরও সুন্দর করে তুলবে। আর এদিকে যদি আমরা চলে আসি, এরা হচ্ছে আমাদের জুনিয়র এসটি ক্যাডেট, যাদের ছাড়া হয়তো আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণই হতো না। এদের এই হার্ডওয়ার্কের জন্য আজকের এই এত বড় অনুষ্ঠানটা এত সুন্দর হয়ে উঠেছে এবং এর সাথে সাথে আমাদের সবাইয়ের যোগদান এই অনুষ্ঠানটাকে পরিপূর্ণ করে তোলে। এখন গ্রাউন্ডের কোন ট্রুপ কোথায় দাঁড়াবে সেটা ঠিক করে দেওয়া হচ্ছে এবং কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যাবে। নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি, কারণ এত বড় একটা অনুষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে, অনেক গেস্টরা আসবেন, তো সব কিছু সঠিক রাখা আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের দায়িত্ব।
তোর নাম কি? ক্যাডেট দেবজ্যোতি রয়। তো আজকের এই অনুষ্ঠানটা যে দুজন অ্যাঙ্কারিং করছে সেটা হচ্ছে এই দুজন। এরা হচ্ছে আমাদের কলেজের ফার্স্ট ইয়ার ক্যাডেট। Now, our national tricolor will be unfurled in glorious presence of our honorable chief justice, Respected principal sir, Sir Dr. Subrat Kumar, our respected Fakulty Manager, Sir Nicholas Kumar. Now, I request our honorable principal sir for violating the flag.
ফ্ল্যাগটাকে পুরো তোল, ফ্ল্যাগটাকে পুরো তোল। ক্লোজো ক্লোজো ক্লোজো। $50% out of question. Thank you. সর্বপ্রথম আমরা আমাদের কলেজ অ্যান্থেমের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করব। মোরা সত্যের ওপরে গরিব ও সমর্পণ পরিবেশনের জন্য আমি মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি সুকন্যা চৌধুরী এবং তার টিমকে। জয় জয় সত্যের
জপিব পূর্ণ সহিব পুণ্যে চাহিব পূর্ণ গান জয় জয় মঙ্গল যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু শুভ চিন্তা নয় যদি দৈন কহিতে হয় তবু অশুভ কর্ম নয় যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভ বাক্য নয় জয় জয় মঙ্গল শ্রী অভয় ব্রহ্মমান আজি মোরা সবে লইলাম যিনি সফল হয়ে মোরা করিব না যাহার ব্রহ্মময় জয় জয় ব্রহ্মের যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাই ভয় নাহি ভয় যদি দৈন কহিতে হয় তবু নাই ভয় নাহি ভয় যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাই ভয় নাহি ভয় জয় জয় ব্রহ্মের মোরা সত্যের পরে মন আজি করিব সমর্পণ জয় জয় সত্যের জয় 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 সত্যের জয় 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 সত্যের জয় Now I will request Cadet Momita Ghosh to come on the stage. I would request respected Principal Sir Dr. Subrata Kumar Roy Sir to come on the stage. Sir, please come on the stage. Next, I request our respected company commander Sir Major Palas Kumar Patra Sir to come on the stage. मैं सब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप स्टेज पे आइए। আমি আমাদের এখানে উপস্থিত আমাদের সিনিয়র টিচার প্রফেসর এখন রয়েছেন ডক্টর মিশির রঞ্জন ব্যানার্জি, ওনাকে অনুরোধ করবো প্লিজ স্টেজে আসুন স্যার। আমাদের কলেজের বড়বাবু শ্রী বেচুরাম মালিক, ওনাকে অনুরোধ করবো স্যার আপনি প্লিজ স্টেজে আসুন বেচুদা। Now I would request Cadet Momita Ghosh to come on the stage and present a bouquet to commanding officer sir. Clap your hands together with for our commanding officer. Thank you, Momita Ghosh. এরপর আমি ক্যাডেট শোভা মাইতিকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য এবং আমাদের কলেজের মাননীয় প্রিন্সিপাল স্যারকে উত্তরীয় এবং পুস্তক স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। স্যারের জন্য জোরে একটা হাততালি হয়ে যাবে। Now I request respected principal sir and respected company commander sir to hand it over the. Now I would request Cadet Shobha Maiti to come on the stage and present a bouquet to our CM sir.
এরপর আমি ক্যাডেট সুকন্যা চৌধুরীকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য এবং আমাদের মাননীয় কোম্পানি কমান্ডার স্যারকে উত্তরীয় এবং পুস্তক স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। স্যারের জন্য জোরে একটা হাততালি হয়ে যাক। বাকি স্যারেদের বরণ করার জন্য আমি শোভা মাইতি এবং সুকন্যা চৌধুরীকে অনুরোধ করব উত্তরীয় এবং পুস্তক স্তবক দিয়ে বরণ করে নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সকলকে। একটু ঘুরে আয়। আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আর এক আমাদের বিশিষ্ট অতিথি, আমাদের স্থানীয় বিধায়িকা মাননীয়া প্রিয়া পাল মহাশয়। ওনাকেও স্টেজে আমন্ত্রণের জন্য আমি ক্যাডেটদের বলবো ওখান থেকে পাইলটিং করে স্টেজ পর্যন্ত নিয়ে আসতে এবং ওনাকে স্টেজে বরণ করে নেওয়ার জন্য। Give a big clap for them. Sir, please. Hello. हेलो। सभी को हिंदी समझ में आती है या इंग्लिश या हिंदी? ओके। आवाज आ रही है सबको लास्ट तक? ओके। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, फैकल्टी मेंबर्स, कंपनी कमांडर, प्रभु जगत बंधु कॉलेज कंपनी, सूबेदार मेजर साहब, अन्य प्रोफेसर साहब लोग और मेरे प्यारे कैडेट्स, आज गणतंत्र दिवस की 73वीं वर्षगांठ है और आप सभी लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पूरे कॉलेज फैकल्टी, कंपनी कमांडर और सारे कैडेट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया आप लोगों के साथ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करने के लिए। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका औचित्य क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है और इसका हमारे समाज पर क्या फर्क असर डालता है, ये सबसे पहला समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोग, आप सभी लोग जिनकी हिंदी है या जो लिटरेचर पढ़ते हैं, आप सभी लोगों ने पुरानी कहावत सुनी होगी कि मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे, और ये पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मतलब जानवर है चरता रहता है और चला जाता है, ठीक, पर एक मनुष्य है जो दूसरे मनुष्य का ख्याल रखता है। तो आज़ादी हमको 1947 में मिल चुकी थी, अब हम पराधीन नहीं थे, स्वतंत्र थे, पर हमें शस्त्र और शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं था, और उसी शास्त्र का ज्ञान पूरी जनता से अवगत कराने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की थी। और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम अन्य फेस्टिवल्स, जो त्योहार आते हैं, उनको हम मनाते हैं, उसी तरीके से हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को भी मनाते हैं। लेकिन आज एज कमांडिंग ऑफिसर और मेरे साथ कंपनी कमांडर यहाँ पर हैं, आपकी यूनिट के सूबेदार मेजर साहब हैं, मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहता हूँ,
हेलो हेलो ओके। मैं एक रिक्वेस्ट बस आपसे ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अब सभी त्योहारों को मनाते हैं, उसमें उसको हर्षोल्लास से मनाते हैं, उसमें नए कपड़े खरीदते हैं, लोगों से मिलते हैं, पकवान खाते हैं, तो उसके साथ साथ हर त्योहार के पीछे जो सीख छुपी है, उस सीख को भी हम लोग समझें कि दीपावली अगर है तो क्यों मनाई जा रही है, ईद अगर है तो वो क्यों मनाई जा रही है, क्रिसमस अगर है वो क्यों मनाया जा रहा है, और उसी प्रकार गणतंत्र दिवस अगर है तो वो क्यों मनाया जा रहा है। हम एक ऐसे देश को फॉलो करते हैं जहां पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, हर किसी के पास अपना हक है, हर किसी के अपने राइट्स हैं, और साथ ही साथ हर किसी की अपनी अपनी ड्यूटीज भी हैं। तो एज कैडेट्स ऑफ एनसीसी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आप लोगों का दायित्व है कि आप अपने संविधान को समझें, और जो नेशन बिल्डिंग ब्लॉक है, राष्ट्र को बनाने की जो सबसे छोटी इकाई है, वो एक सिटीजन है, एक आम आदमी है, एक नागरिक है। और आप भी जिस समय से आप वयस्क हो गए हो, 18 साल से ऊपर की आप लोगों की उम्र हो गई है, आप भी इस देश के एक नागरिक बन चुके हो। नेशन बिल्डिंग में आपका उतना ही रोल है जितना इस देश के राष्ट्रपति पहले नागरिक का है। तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप जितना जल्दी इस चीज को समझोगे उतना ही आप जागरूक बनोगे, जितना आप जागरूक बनोगे उतना ही आप अपने साथियों को जागरूक बनाएंगे, अपने घर वालों को जागरूक बनाएंगे। और जिस तरीके से आप बाकी सारे त्योहारों को मनाते हैं, इस त्योहार को भी आप मनाओगे और समझोगे कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है। गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हो कि हमारा संविधान बनाया गया था, पर संविधान क्या है? अगर आप हिस्ट्री में हमारे पुराने ग्रंथों को पढ़ोगे, अगर आप वेद, पुराण, इन सबको अगर आप पढ़ोगे तो वो शस्त्र की बात करता है, शस्त्र विद्या, वेपन ट्रेनिंग, ठीक। उसके साथ साथ वो शास्त्र की बात करता है, नीति की बात करता है। नीति मतलब जीने के मापदंड, जीने के उसूल, किस तरीके से हमको जीना है, क्या क्या हमारी गतिविधियां होनी चाहिए, समाज के प्रति हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उन सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उत्तरदायित्व आपको मिला है, उसको आपने निभाना कैसे है। और उसको आप तब निभा पाओगे जब आप सबसे पहले उसको समझोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है क्या, एक अच्छा नागरिक कैसे बना जा सकता है। और एक अच्छा नागरिक आप तभी बन सकते हो जब आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ोगे, समझोगे, आप आपस में एक दूसरे से समझोगे, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपकी यूनिट के जो एनसीओज हैं, पीआई स्टाफ हैं, और जो बाकी के अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा आपके घर के आसपास जो आस पड़ोस में लोग रहते हैं, उनसे आप इन सब चीजों के बारे में बात करोगे। आज घर जाके अगर आप दो लोगों से भी एक बात करते हो, एक बड़े से और एक छोटे से, बड़े से अगर आप ये ज्ञान लेते हो कि गणतंत्र दिवस पर आप एक बात क्या चाहोगे जो मैं आपसे सीखूं, और गणतंत्र दिवस पर एक बात वो क्या है जो आप अपने छोटे भाई बहन को सिखाना चाहोगे। अगर इतना भी आप हर गणतंत्र दिवस पे करोगे तो यकीन मानिए कि जिस समय आप मेरी उम्र में आएंगे, आप ऑलरेडी एक अच्छे नागरिक बन चुके होंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, और कार्यक्रम को आगे भी बढ़ाना है, बाकी सारे आपके इवेंट्स लाइंड अप हैं। बस एक फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो बिल्डिंग ब्लॉक है सोसाइटी का, मूल आधार है समाज का, वो एक नागरिकी है। और एनसीसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है जो आपको ये समझा पाए कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाता है। इसकी जो मोटो है उसको जब आप पढ़ते हो तो डिसिप्लिन की बात करता है, एकता की बात करता है, ठीक। तो इन्हीं इकाइयों को अगर आप पकड़ के चलोगे तभी आप यूनिफॉर्म सर्विस और समाज के बीच में एक ब्रिज का काम कर पाओगे, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप सिविल जो डिपार्टमेंट है और जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, उसके बीच का ब्रिज हो, उसके बीच का पुल हो। और एक अच्छे समाज की संरचना में आपका उतना ही दायित्व है जितना इस देश के राष्ट्रपति, इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, यहाँ के राज्यपाल, उनका जितना दायित्व है उतना ही आप सब लोगों का उतना ही दायित्व है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार के गणतंत्र दिवस से आपको कुछ सीख जरूर मिली होगी, और इस चीज को आप अपने जीवन में इसका अनुसरण करने की कोशिश करोगे, ताकि आपको, आपके पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, जो कैडेट्स यहाँ पे नहीं आ पाए हैं, उनको मैं एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
जिन कैडेट्स का आज प्रमोशन किया जाएगा उनको बहुत बहुत बधाई, और साथ ही एक आग्रह भी कि अब आपका ओहदा बढ़ रहा है तो आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बढ़ेंगी। कुछ आपके सीनियर कैडेट्स यहाँ पे आ रखे हैं जो ऑलरेडी पास आउट हो रखे हैं, उनसे जब आप बातचीत करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जितने आपके कंधे और बाजू भारी होते जाते हैं, भारी होना मतलब मोटापा नहीं, भारी होना मतलब जब आपका रैंक बढ़ जाता है, जब आपका ओहदा बढ़ जाता है तो उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। एंड विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आपकी आती हैं तो उसके साथ आपको अपना जो व्यक्तित्व है उसको भी निखारने की जरूरत पड़ती है। जो कैडेट्स आज ध्वजारोहण में शामिल थे और गार्ड ऑफ ऑनर में शामिल थे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर रेंडर करने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों का टर्नआउट अव्वल दर्जे का था। आशा करता हूं कि प्रभु जगत बंधु बटालियन कंपनी जो है हमारी एनसीसी की 41/5 वो आगे भी ऐसा ही काम करते रहेगी और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगी। धन्यवाद। गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे ख्वाब सदी निदा कर दे तो पूरे आज सारी दा
আমাদের পরবর্তী নিবেদন একটি রবীন্দ্র নৃত্য, যা পরিবেশন করতে আসছে দিশা জানা এবং তার টিম। মনোমর মেঘের সঙ্গী মনোমর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমঝিম 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 মনোমর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম। মনোমর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে প্রচিত প্রচিত চকিত লড়িত আলোকে মনোমর হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে প্রচিত প্রচিত চকিত তড়িত আলোকে ঝঞ্ঝন মঞ্জির বাজায় ঝঞ্ঝা রুদ্র আনন্দে কল 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 মন্ত্রে নির্ঝরিণী ডাক দেয় প্রলয় আহ্বানে মনোমর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমঝিম রিমঝিম রিমঝিম। মাইক্রোফোন। এইমাত্র আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে আমাদের অঞ্চলের মাননীয় বিধায়িকা প্রিয়া পাল মহাশয়। আমি ওনাকে একবার মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করব, সাথে অনুরোধ করব প্রিন্সিপাল স্যারকে মঞ্চে আসার জন্য, ওনাকে উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেবেন। ওনার সাথে সভাপতি তপন পাল মহাশয় আছেন, ওনাকেও অনুরোধ করব স্টেজে আসার জন্য। বাবু ফটোগুলো তুলবি, আমার স্টোরেজটা শেষ হয়ে গেছে। সোশ্যাল ডিস্টেন্সটা মেনটেন করবেন, স্টেজের সামনেটা ভিড় করবেন না, আমি অনুরোধ করছি সকলকে। আমি প্রিন্সিপাল স্যারকে অনুরোধ করব
আমাদের মাননীয় বিধায়িকাকে পুষ্পস্তবক এবং উত্তরীয় বরণ করে নিতে সামনে তুমি একটু হাতটা দূরে রাখো এনসিসি তুমি একটু হাতটা দূরে রাখো হাতটা সবাই তব আহ্বান প্রচারিত শুনি তব উদার বাণী হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খ্রিস্টানি পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে প্রেম হার হয় গাথা জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা ঘোর তিমির ঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত নয়নে অনিমেষে দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে
ভাগ্য বিধাতা। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলায় গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবন আনন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। জিনা 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 রে উড়া গোলায়, মাইকের চুনারিয়া লাগে গায়। জিনা 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 রে উড়া গোলায়, মাইকের চুনারিয়া লাগে গায়। रंग तेरी गीत का, रंग तेरी प्रीत का, रंग तेरी जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, रंग तेरी प्रीत का, लाई तेरी चुनरिया लहराई। जब जब मुझ पे उड़ा सवार, माई तेरी चुनरिया लहराई। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराई। आ आ আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলায় হাসি, বাংলায় বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাটি উল্লাস করি, বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে চোখে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলায় আমার নৃত্য স্লোগান, ক্ষিপ্ত তীর। আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আ আ আ আ আ
आज से हम अपना एनसीसी का कॉलेज एनसीसी यूनिट का अलग से वेबसाइट पब्लिश कर रहे हैं। जैसे हमारे कॉलेज का वेबसाइट है, कॉलेज वेबसाइट, वैसे ही हमारा एनसीसी वेबसाइट आज से पब्लिश होगा। और आगे से हमारा एडमिशन कैंप सारे इस रिलेटेड जो भी काम थे थ्रू वेबसाइट हम लोग करेंगे, ऐसे मतलब सिद्धांत कॉलेज की तरफ से लिया गया है। तो आज इस पावन मौके पे 26 जनवरी के दिन मैं हमारे रेस्पेक्टेड कमांडिंग ऑफिसर सर को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आए और एक क्लिक करके अपना वेबसाइट का शुभ उद्घाटन करें। सर प्लीज। जैसा कि आपके कंपनी कमांडर साहब ने अभी भी बताया दैट कॉलेज ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारी 41/5 कंपनी है उसके बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और जो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस पास होते हैं, एनसीसी की जो एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जाती हैं, साथ ही साथ आप जिन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो एंड टाइम टू टाइम जो अपडेट्स आते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, उनको टाइमली हर कैडेट तक पहुंचाने के लिए और प्रभु जगत बंधु कॉलेज कंपनी जो है इसकी एक्टिविटीज़ को सोशल प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए कॉलेज ने वेबसाइट डिज़ाइन की है। मैं जो भी इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व है उनको धन्यवाद बोलता हूँ और शायद अभी यहाँ पर नहीं आए हैं, बट मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत थैंक्स। इस वेबसाइट के डिज़ाइन होने के बाद आई थिंक कैडेट्स को ज़्यादा मौका मिलेगा इंटरेक्ट करने का और एनसीसी एक्टिविटीज़ के बारे में जानने का। हम कोशिश करेंगे जो आपका स्टडी मटेरियल है जो कि एनसीसी में फॉलो होता है उसको भी हम इसमें अपलोड कर पाएँ और जो टाइम टू टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चेंज होते रहते हैं एनसीसी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड उसको भी इसमें अपलोड करें। ज़्यादा से ज़्यादा कैडेट इसको एक्सेस करेंगे बिकॉज ये ऑनलाइन आपका अवेलेबल है एंड बाकी मैं पूरे कॉलेज और पूरी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऐसे ही अपना काम अब करते रहिए एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एक समय के बाद हमको रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि उसके बिना आपके लिए कदम अब आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। एक समय था, कुछ समय पहले अगर आप याद करोगे, किसी एक पार्टी के किसी एक पॉलिटिशियन ने डिजिटल फोरम या डिजिटल इंडिया के अगेंस्ट एक कमेंट दिया था कि क्या आप आलू बेच सकते हैं या फिर क्या अगर आपको गाय का दूध बेचना है तो आप डिजिटल इंडिया के थ्रू बेच सकते हैं। तो उसका लाइव एग्जांपल है, अभी जो दूध वाले हैं वो अपने साथ फास्ट वो टैग लेके घूमते हैं, दूध बेचते हैं, वहीं पे स्कैन कराते हैं, वहीं पे उनको पेमेंट भी हो जाता है। तो जब एक दूध वाला जो गांव का है वो जब इस चीज़ को फॉलो कर सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म को, तो एनसीसी कैडेट्स तो वैसे ही बिगेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व की सबसे बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से फॉलो करना है और इस चीज़ को यूटिलाइज करना है और इसमें अब इन्वॉल्व होना है। आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के एक एम्प्लॉय हैं या आपके टीचर हैं, उन्होंने ये बना के अगर आपको दिया प्लेटफॉर्म, उसको इम्प्रूव करना है। मैं जानता हूँ बहुत सारे कैडेट्स होंगे आपके बीच में जो इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते होंगे, तो इसको और भी अच्छा बनाना है, चाहे वो आपका यूट्यूब हैंडल है या आपका ट्विटर हैंडल है या आपकी कॉलेज की वेबसाइट है। मैं कंपनी कमांडर को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसे ही काम आगे करते रहेंगे। थैंक यू। अभी आप आगे का जरूर नहीं ये तो है।
Our cadets have done well in NCC Day celebration. One more clap for them. ভাই আরো জোরে বল ওই I would আরো জোরে বল request Cadet Sanchidal Hara to come on the stage. উপরে যা আরে স্টেজে ওঠ ভাই স্টেজে উঠবি স্যার তো স্টেজ নিচে থেকে নিতে বলেছে স্যার নিচে থেকে নিচে নিতে বলেছে Next, I would request Cadet তোরা ভাই এমন চলে এসেছি to come on the stage. আর একটু সর হালকা সর দিকে জয় স্যার I request Cadet Disha Jana to come on the stage. ওই বল পুরো কারবাই করতে ওকে বল পিছনেরটাকে বল পুরো কারবাই করতে I request Cadet Shreya Pal to come on the stage. ঠিক আছে কিছু শেখানো হয় নাকি I request Cadet Suresh Nasil to come on the stage. All these performers have performed well in NCC Day celebration in Fort William College. So for these performers, one big hand for them. This is for their appreciation and encouragement. Thank you everyone. I would request Cadet Brishti Pawani to come on the stage, who have won first position in inter-college painting competition. Put your hand together for Brishti Pawani. The microphone to our company commander sir to call out the rank please. आज आप सबको आपका जो मेहनत है वो आज जैसे दिन पे रंग लाता है, जो इस चीज़ को डिजर्व करते हैं। साल भर का मेहनत, लीडरशिप, पार्टिसिपेशन सब कुछ देख करके इसमें से कुछ ही कैडेट को रैंक के लिए चुना जाता है, क्योंकि खुद से आगे खड़े होते हैं। रैंक का मतलब ये नहीं कि मतलब रैंक मिल गया खत्म हो गया सब कुछ, ये नहीं। सर ने पहले ही बताया है कि जिसको रैंक मिल रहा है मतलब उसके ऊपर और भी जिम्मेदारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है, उसको सही से निभाना और बाकी अपने खेलों के साथ सबको लेके चलना, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगा। रैंक सभी काम ठीक करते हैं, नहीं तो ऐसे कंपनी ठीक ठाक नहीं चलती है, पर उसमें से भी जो थोड़ा बेहतर करते हैं उसको रैंक दिया जाता है। आज जैसे 20 कैडेट को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में से रैंक दिया जाएगा, उसका नाम अनाउंसमेंट होने वाला है। आज से अभी जब आप लोग यूनिफॉर्म पहनोगे, जिसका नाम अनाउंस किया जाएगा, वो आज के बाद से आप रैंक लगा सकते हो। और कुछ एक रैंक आज यहाँ पे
अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब के हाथ से लगाया जाएगा यहाँ पे। बाकी का मैं यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दूँगा। From LCPL, Cadet मौमिता घोष, LCPL। पूरे जब रैंक अनाउंसमेंट होंगे सब क्लैप करेंगे। कैडेट मौमिता घोष, LCPL। कैडेट सुकन्या चौधरी, LCPL। कैडेट अंजलि मंडल, LCPL। कैडेट अनिर्बान दास, LCPL। कैडेट किरणमय माइती, LCPL। कैडेट शिवा यादव, LCPL। कैडेट सुमना सरदार, CPL। कैडेट शोभा माइती, CPL। कैडेट पुष्पा सिंह, CPL। कैडेट अभय कुमार माझी, CPL। कैडेट कृष्णेंदु दास, CPL। कैडेट शिल्पा चटर्जी, सार्जेंट। कैडेट संचिता धारा, सार्जेंट। कैडेट पप्पू माइती, सार्जेंट। कैडेट अमियो डे, सार्जेंट। कैडेट कोयल नाथ, CQMA। कैडेट सायंतिका बोस, जूनियर अंडर ऑफिसर। कैडेट शेख मोइन हुसैन, जूनियर अंडर ऑफिसर। कैडेट प्रिंस कुमार पटवा, सीनियर अंडर ऑफिसर। अभी नाम कॉल किया जाएगा एक एक करके। कोयल, शांतिका, शेख मोइन एंड प्रिंस। आप आएंगे यहाँ पे और अपना रैंक लगाएंगे। जैन सर। साल पहले मुझे भी एक सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। मैं NDA में सार्जेंट बनूँगा, ठीक है। आप सार्जेंट बने हो, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको अच्छे से निभाना है, ठीक है। यस सर। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपने सारे जो फेलो सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके साथ शेयर करना है और अपना जो कॉलेज है और जो अपनी कंपनी है उसका नाम और ऊपर लाना है, ठीक है। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 41 बंगाल को सबसे नंबर 1 लाने का वेस्टर्न बनना, ठीक है। यस सर। आगे कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया। Clap your hand together for Cadet Koel. सैल्यूट। जय सर। I request जय साहब। गेदा गेदा गेदा। तो भाई जो मैं बता रहा था उनको, कोयल को आपने सुना? नहीं सर। अच्छे से निभाना है। टीम बिल्डिंग, लीडर स्ट्रेट्स
सब आपके अंदर आनी चाहिए, ठीक है? तो कंपनी का नाम और ऊँचा करना है, ठीक? इनका मान रखना है अच्छे से, ठीक? और कोशिश करनी है इसमें एक स्ट्राइक और लगे अभी। वो कैसे लगेगी? अभी आप सेकेंड ईयर में हो? नो सर। ठीक है, आर्टिस्ट कांग्रेचुलेशन। Clap your hands together for Cadet Shantika Bhushan. Cadet Sheikh Moin Hassan to come on the stage. Hands up. क्या सब्जेक्ट है आपके? कॉमर्स। कॉमर्स? Clap your hands for our JEO Sheikh Moin Hassan. Hands up. Raj Kumar Patwa to come on the stage. Thanks, sir. Hands up. बिफोर ये आपको पहना है, ठीक है? इनकी एक विश पूरी करनी होगी आपको। इधर देखो, इनकी एक विश पूरी करनी होगी, ऐसे नहीं मिलेगा इनका, बता दूँगा आपको, ठीक है सर? बाकी मैं इनको अथॉरिटी दे रहा हूँ, आज आपको टैप करना है, ठीक है? यही ट्रेडिशन फॉलो होगा, एक SEO पहनाएगा, एक कंपनी का ऑर्डर पहनाएगा, मैंने हाथ लगा दिया। Clap your hands for our SEO Kumar Patwa. आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको आगे बता देंगे, आपको ब्रीफिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यस सर। ठीक है? Thanks, sir. পরিসমাপ্তি ঘটবে। প্লিজ কাম অন। थैंक यू सोनाली। अभी हम लोग हमारे सेलिब्रेशन के एकदम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। अभी जो ये वोट ऑफ थैंक्स होता है, ये तो एक फॉर्मेलिटीज होता है। वोट ऑफ थैंक्स देने से पहले मैं एक दो बात शेयर करना चाहता हूँ। सर, ये जो आज का पूरा सेलिब्रेशन है और इसका जो पूरा तैयारी यहाँ पे हुआ है, कुछ भी हमारे यहाँ पे आउटसोर्सिंग नहीं है सर। ऑल द अरेंजमेंट डन बाय कैडेट्स। मतलब स्टेज बनाने से लेकर के बाकी सब कुछ जो कैडेट्स ने किया है। और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं वोट ऑफ थैंक्स का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं
हमारे आदरणीय कमांडिंग ऑफिसर सर मेजर कार्तिक मंडल सेना मेडल, उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपना कीमती समय निकल के आज हमारे बीच वो पधारे, उनका और भी एंगेजमेंट था, उनको एडजस्ट करके कैडेट्स का मन रखने के लिए सर आए। इसके लिए सर को मैं मेरी तरफ से और प्रिंसिपल सर की ओर से, कॉलेज की तरफ से, हमारे कंपनी की ओर से सर को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे प्रिंसिपल सर, जिसके सपोर्ट के बिना ये एनसीसी जो हमारा रन कर रहा है इतने अच्छी तरह से रन कर रहा है, वो कभी संभव नहीं होता। वो ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं एनसीसी को, कभी हमारा कोई मांग अनसुना नहीं रहता। जो भी बोलते हैं सर हर एक उसको करने के लिए तैयार रहते हैं। और आज छुट्टी के दिन होने के बावजूद वो इतना दूर से हमारे बीच आए, और उनका दूसरा भी एंगेजमेंट है। सर अभी भी कॉलेज में मौजूद हैं, हमने चैम्बर पे अपना नेक का विजिट है, उनका काम चल रहा है, तो सर उसमें एंगेज हैं। तो मैं एनसीसी यूनिट की ओर से, कंपनी की ओर से और मैं खुद प्रिंसिपल सर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच आए हैं हमारे सुबेदार मेजर साहब 41 बेंगल बटालियन एनसीसी के, जिनके साथ हमारे बहुत बढ़िया संबंध है। सर मेरे नहीं, कैडेट्स का भी, कैडेट्स भी कुछ प्रॉब्लम पढ़ने पर मेरे से पहले उनको फ़ोन कर देते हैं, उनके पास चले जाते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। और एस एम साहब सर्वदा तैयार रहते हैं उनको असिस्ट करने के लिए, उनका तकलीफ दूर करने के लिए। और एस एम साहब आए, और पिछले जितने भी हमने अनुष्ठान किया है या फिर सर को जब जब हम लोगों ने इनवाइट किए हैं, सर कभी भी ना नहीं बोले हैं, आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से एसएम साहब को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ 41 बंगाल के पूरे पीआई स्टाफ को, इंटायर 41 फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई गणतंत्र दिवस का और धन्यवाद। बाकी हमारे जो रेस्पेक्टेड प्रोफेसर आज यहाँ पे हमारे बीच आए अनुष्ठान के लिए, जैसे हमारे सामने बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सुधांशु सरकार, मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जब भी हमने बुलाया वो हमारे बीच आए और हमारे साथ हर अनुष्ठान में शामिल हुए, शेयरिंग की हमारे साथ, इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। बाकी जितने भी आदरणीय प्रोफेसर, नॉन टीचिंग स्टाफ आज हमारे बीच इस अनुष्ठान में आए हैं, उनको मेरे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ हमारे जो एलुमनी एसोसिएशन है, उनके भी काफ़ी मेंबर हमारे साथ अभी भी कंधे से कंधे मिला के काम करते हैं, कल से लगे हुए हैं। वो भी रनिंग कैडेट के साथ वो भी मतलब लगे हुए हैं, इसको ठीक करो, उसको करो, ऐसे करो, तो वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। जो कोई कैडेट ऐसे भी हैं जो यहाँ से 10 साल पहले पास आउट हुए, 8 साल पहले पास आउट हुए, वो भी हमारे साथ अभी एक्टिवली लगे हुए हैं, तो उनको भी मेरी तरफ से हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे अंत में हमारे पूरे कैडेट्स को, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके इतना बढ़िया अनुष्ठान को प्रस्तुत किया, चाहे वो कल्चरल टीम हो, चाहे वो जो जिम्नास्टिक वाला पार्टी हो, और हमारा वर्किंग वाला पार्टी, जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत किया है, गड्ढा खोदने से लेकर के पूरा ग्राउंड को साफ सफाई, स्टेज बनाना, सब कुछ, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं उनको भी धन्यवाद तो नहीं दूंगा, अभी उनको मैं बधाई दूंगा कि आपका काम ठीक ठाक है और आप ऐसे करते रहो। वहीं से आप निकल के आगे आओगे। जो देखा 20 नाम आज अनाउंसमेंट हुए हैं, वही आपकी तरह ही थे, आपके बीच में से वो आगे आए। मैं आशा रखूंगा कि तुम लोग के अंदर से फिर अगले साल ऐसे ही 20 कैडेट मेरे सामने होंगे, जिसको ये अवसर मिलेगा, ये सम्मान मिलेगा रैंक लगाने का।
अंत में मैं सभी को एक बार और 73वें गणतंत्र दिवस का हार्दिक बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपना वोट ऑफ थैंक्स यहीं समाप्त करता हूं। और इसके साथ साथ मैं बोलूँगा जो भी कल्चरल टीम है अपना, वो अपना स्टेज के ऊपर आ जाए और एनसीसी सॉन्ग फॉलोड बाय नेशनल एंथम होगा। उसके साथ ही भारत माता की जय घोष के साथ हमारा यह अनुष्ठान समाप्त होगा। उसके तुरंत बाद ही एक ग्रुप फोटोग्राफ होगा यहाँ पे। एक एडिट को बोलता हूँ, वो सॉन्ग खत्म होने के बाद वो चेयर से अरेंज करा देंगे यहाँ पे, ठीक है? ओके, थैंक यू। স্যারের জন্য জোরে একটা হাততালি হয়েছে। এই তো এটাতে জয়েন করি। मालूम है मेरे को। এরে সাবধান, পুরো রেডি, সন্দিক সাবধান। भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है। अपनी मंजिल एक है, एक है, एक है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है। कश्मीर की धरती रानी है, सरकार हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपनी गूंज पाया है। कश्मीर की धरती रानी है, सरकार हिमालय है, सदियों से हमने इसको अपनी गूंज पाया है। देश की रक्षा की खातिर हम शमशीर उठाएंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। जंग में बिखरे तारे हैं, हम एक जग मिल एक है, एक है, एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है, ओह एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर की गारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का है घड़ियाल कहीं, कुल्ला की जहीं है अज़ान। गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का है घड़ियाल कहीं, कुल्ला की जहीं है अज़ान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह काला है, एक ही अल्लाह काला है। रंग बिरंगे दीपक है, हम एक ही जगमग एक है, एक है, एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं,
द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय 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 কিছুক্ষণ আগে র্যাঙ্ক ডিস্ট্রিবিউশন ন্যাশনাল অ্যান্থেম এবং আমাদের যে এনসিসি সং সেটা গাওয়া হয়েছে, তোমরা সবাই দেখলে। এবং আমি জানি না ন্যাশনাল অ্যান্থেমটা যখন হচ্ছিল কতজন দাঁড়িয়েছিলে, মানে যারা ভিডিও দেখছিলে কতজন দাঁড়িয়ে পড়েছিলে আমি জানি না, কিন্তু এটা একটা শ্রদ্ধা। তো এবার হবে ফটো সেশন, যেটার মাধ্যমে আমাদের এই স্মৃতিগুলোকে ক্যাপচার করে রাখা হবে পরবর্তীকালের জন্য, যাতে বছরের পর বছর কেটে যাওয়ার পরেও এই ছবিগুলো দেখে আমরা স্মৃতিচারণ করতে পারি, কারণ এগুলোই আমাদের অনেক আনন্দ দেবে পরে, তাই না? তো চলো ফটো সেশন শুরু করা যাক। সব ঠিকঠাক। তো প্রোগ্রাম প্রায় শেষের পথে, এখন স্যারেদের টিফিন ব্রেক চলবে, ঠিক আছে? টিফিন ব্রেক চলার পরে আমাদের একটা প্রোগ্রাম হবে, যেটা প্রত্যেক এনসিসি ক্যাডেটদের যে কোনো সেরিমনি হওয়ার পরেই ঘটে থাকে। সেটা দেখার জন্য হয়তো মানে অনেক ক্যাডেট হয়তো অপেক্ষা করে আছে যে এটা কখন হয়, ঠিক আছে? তো সেটা কিছুক্ষণের মধ্যেই হবে, ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। কিছুক্ষণ পরে সেটা হতে চলেছে, দারুণ দেখতে লাগবে, লিটারালি বলছি। এত দিনের ইচ্ছা ছিল যে আমাদের কলেজের যে মানে যে কালচারগুলো হয়, মানে 26শে জানুয়ারি হোক বা 15ই আগস্ট, সেটা একটা মানে ভিডিওর মাধ্যমে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া, এবং সেটা আজকে আমি করতে পেরে আমি সত্যি খুবই খুশি ভেতর থেকে। এবার কিছুক্ষণের মধ্যে স্যারেরা খাওয়া দাওয়ার পরে আমাদের সেই সেরিমনিটা হবে, আমাদের স্পেশাল সেরিমনি, তারপরে হবে আজকে ভিডিওটা শেষ, ঠিক আছে? তো কিছুক্ষণ ওয়েট করে যাও, ভিডিওটা দেখতে থাকো শেষ পর্যন্ত, ধীরে ধীরে সবই দেখতে পাবো, ঠিক আছে? চলো। गूगल मीट पे गूगल मीट पे सर छोड़ दो। लेवल तक वो जाना चाहिए और उससे आप क्या अचीव कर रहे हो बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा।
अंडमान्स में और कहीं कहीं नॉर्थ ईस्ट में इसका इक्विवेलेंट एक ग्रीन वाला होता है जो सांप में नहीं लगाता, सांप का भी नहीं मिलेगा, किरप वाला होता है। ये हाई ऑल्टीट्यूड है, 9 ईयर्स सर्विस का है। बाकी 9 ईयर्स के अलावा ये 20 ईयर्स है। एंड इंडिपेंडेंस 50 साल हो गए थे आज़ादी के, तब का है। अभी 75 साल का आएगा। बाकी तुमने देख लिया तो आपके सेकंड वाला सियाचिन का सेकंड ऑपीजे पता है ना? ऑपीजे पता नहीं है? ऑपरेशन विजय। सर जाने के टाइम पे मोमेंटो मोमेंटो তো এখন আমাদের সিও স্যার চলে যাচ্ছেন। আমাদের অনুষ্ঠান একদম শেষের পথে, আর কিছুক্ষণ বাকি। चल पूरा डिमांड। ओए ओए सर्कल करो, ठीक से सर्कल करो। ओए पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे 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 हो जाओ। जोश है, जोश है। आगे से जब सीओ किसी का नाम पूछेगा, ठीक है, उसको कैडेट पहले बताना है या रैंक पहले बताना है। ओके? यस सर। करेगा? यस सर। फौज ज्वाइन करेगा? यस सर। फौज के नाम पे और एनसीसी के नाम पे 20-20 हो जाए? यस सर। अटवा चालू हो जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाउड। ओए फिर से जितना बोला गया उतना ही। ओए 10 गिनती के साथ तारू अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोश है এখন জান করবি। कॉलेज के नाम पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मम्मी के नाम पे 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एचडी वाले रुकना नहीं है। और किसके नाम पे होगा? सीनियर भी हो जाओ सभी सीनियर सभी सीनियर होगा। सबके नाम हो जा, बढ़ा ले थोड़ा बढ़ा ले। ऐसे होता है सेरेमनी।
বড় মজায় আছে আজকে সত্যি ওরা। এই গ্রাউন্ডটায় অনেক অনেক স্মৃতি আছে রে, 3 বছরে বহুত স্মৃতি আছে। কত মার খেয়েছি, কত হাসি ঠাট্টা হয়েছে, কত মজা হয়েছে। জয় হিন্দ। कितना जोश है? ओए बड़ा करो। जल्दी राउंड हो जा। ओए सीनियर बड़ी, अबे बड़ा करो ना, ओए बड़ा करो, ओए सर्कल बड़ा करो थोड़ा, सर्कल को थोड़ा बड़ा करो। ओए रुको 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 रुको, तो सब बोलो भारत माता की, भारत माता के, भारत माता के, 41 बंगाल बटालियन के, 41 बंगाल बटालियन के, 41 बंगाल बटालियन के, हम सब बैंड एक साथ गिनती के साथ 10 वर्किंग कौन करेगा? 10 एक साथ गिनती के साथ 10 ताड़ू अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। जोश है? खड़ा एक साथ हजार তোদের কেমন লাগলো বলো? কেমন লেগেছে? আমার দারুণ লেগেছে। এটা কি ফার্স্ট মেডেল? ফার্স্ট মেডেল। আনন্দই আলাদা। কি রে তোর কেমন লাগছে? হেভি ফার্স্ট টাইম তাই তো? ঠিক আছে আজকে কি বার? This is Senior Under Officer Orko Chakrabarti, 2021 RDC return, who was addressing our cadets about their responsibilities. ব্লগের একদম শেষের পর্যায়ে, আর বেশি কিছু বাকি নেই, শুধুমাত্র আমার লাস্টের কিছু কথা, তারপরে আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করব, কারণ অনেক বড় ভিডিও হয়ে গেছে। সিনিয়র ये कह रहा है कि কখনো কোনো এক্সকিউজ দেবে না, যাই কিছু হোক জীবনে, যাই কিছু ঘটুক, কখনো এক্সকিউজ দেবে না। তোমার লাইফে তোমার প্রবলেম, ডোন্ট এক্সকিউজ টু আদার্স। আমার সাথে বাকিরা কেমন আছে? সে যদি কখনো এক্সকিউজ না দিতে পারে, তোদের কিছুই হয়নি, তোরা একদম সুস্থ সবল আছে।
ঠিক আছে, নাম্বার 1 পয়েন্ট, কোনো এক্সকিউজ কখনো দিবি না। যখন কোনো কারবাই হবে, সেটা ড্রিল হতে পারে, সেটা ওয়েপেন্সের কোনো কিছু হতে পারে, গার্ড হতে পারে, পাইলটিং হতে পারে, কালচারাল প্রোগ্রাম হতে পারে, যে যেটাতে বেস্ট আছে সেটা তো থাকবেই, যে যেটাতে বেস্ট নেই, যার যেটা লো পয়েন্ট, ঠিক আছে, সেটাকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করবি থ্রু দ্য গাইডেন্স অফ সিনিয়র্স। ওকে, সিনিয়রদের কাজ হচ্ছে, তোদের দায়িত্বটা কিন্তু বেড়েছে, ফার্স্টেই আমাদের সিও এসে সবাইকে বলে দিয়ে গেছে তোদের দায়িত্ব বেড়েছে। এখানে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় ম্যাক্সিমাম কোনো কেউ চেনে না, কেউ কোনো সিনিয়রকে চেনে না। our new rank holders. স্যার একটা কথা বলছি খালি, সামথিং কে কোন সিনিয়র থাকে ফার্স্ট অফ অল তাদেরকে চিনবি, ঠিক আছে, কীভাবে রেসপেক্ট দিতে হয় সেটা জানবি। আর যখন এনসিসি করবি, এনসিসি থেকে ওই আসছি যাচ্ছি ওয়ার্কিং করছি বাড়ি চলে যাচ্ছি নয়, টোটাল একটা টার্গেট রাখ যে আমাকে এই ফিক্সড টার্গেট, ঠিক আছে, টার্গেটটা ডে বাই ডে ইমপ্রুভ কর। ফার্স্ট অফ অল আমি সব জায়গায় একই কথা বলি, যে তোদের ট্রুপ আছে, ট্রুপের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে যে বেস্ট হতে পারে। ফার্স্ট অফ অল ট্রুপের থেকে একজন এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু করে দেখা, ট্রুপ থেকে বেরিয়ে একজন ভালো লিডার হয়ে দেখা, ঠিক আছে। বন্দে মাতারাম সবাই বলে না, বন্দে একজন বলে, মাতারাম বাকিরা বলে, বা ইনকলাব জিন্দাবাদ যখন বলে, ইনকলাব একজন বলে, বাকি পেছনে সবাই জিন্দাবাদ বলে। ইনকলাব বলার চেষ্টা করবি সবসময়, প্রত্যেকজনকে বলবি। তো কিছু এটা টার্গেট রাখ জীবনে, যেখান থেকে কিছু শিখে যাবো, বেটার কিছু করবো। আর যখন কোনো সিনিয়রকে দেখবি, স্যারকে দেখবি, ইউনিফর্মে থাকলে 100% রেসপেক্ট দিবি, উইদাউট ইউনিফর্মে থাকলে জয় হিন্দ কীভাবে দিতে হয় না দিতে হয় সব সিনিয়ররা শিখিয়ে দেবে। ওকে, কোনো ধরনের প্রবলেম হলে জিজ্ঞেস করে নিন। কোনো প্রবলেম? এই গাইজ, তো অনুষ্ঠান আজকে শেষ। পুরো অনুষ্ঠানটা তোমাদের কীরকম লাগলো আমি জানি না, ঠিক আছে, তবে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তবে হ্যাঁ, কেউ কিন্তু কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলবে না জয় হিন্দ জয় ভারত, ঠিক আছে। আজকে রিপাবলিক ডে, তো সবার কাছ থেকে এটুকু আশা করতে চাই যে অন্তত কমেন্ট বক্সে সবাই এটুকু লেখো যে জয় হিন্দ, ঠিক আছে। এর থেকে বেশি কিছু আশা করবো না। আজকে অনেকক্ষণ লেগে গেছে, ঠিক আছে, বহুক্ষণ ধরে ভিডিও হয়েছে। তো যারা এখনও ভিডিওটা দেখছো সাবস্ক্রাইব করোনি, সাবস্ক্রাইবটা করে দাও। এরকম অনেক ভিডিও আসতে চলেছে, অনেক। আমি চেষ্টা করবো এর থেকে অনেক ভালো ভিডিও আনার, ঠিক আছে। শুধু তোমাদের একটু সাপোর্ট চাই, সবাই একটু সাপোর্ট করো। তো এখন 2:30 বেজে গেছে প্রায়, ঠিক আছে, বেশি টাইম নেই, ভিডিওটা এখানে শেষ করতে হবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, খুশি থেকো। জয় হিন্দ।